यार ये देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एंड वेटेड फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे दोनों आ रहे हैं. यूजुअली वी टेक फर्स्ट एंड सेकंड क्योंकि जो दूसरा है वो भी तो दैट इज ऑल्सो वेरी नियर. ओके, देन वी मूव अगेन टू कंक्लूजन. Both had relative percentage scores a few percent higher than the responsiveness, tangible, empathy, assurance and guidance dimensions. So that's why we have taken that. Then second, with reference to the reliability dimension, being more proactive and receptive to helping students overcome difficulties and problems could make a difference, as would well executed students mentoring and pastoral schemes that you can derive from your circle scale basically, and the results that you can derive. Attention is needed to ensure that staff members are credited with sufficient time to undertake such duties. Values high आ रही थी ना वहां पर, तो उसी के basis पर it was being concluded. Then performing this service right on the first occasion also calls for attentive listening by employees to make sure that such students are fully understood and the correct service or advice is provided and effectively communicated. गैप्स ज्यादा आ रहे थे ना, वो हमने देखा था इस पॉइंट पे. तो जहां जहां गैप्स ज्यादा आ रहे थे, परसेप्शन में वैल्यूज कम आ रही थी, या फिर जहां पर गैप्स ज्यादा आ रहे थे तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, आप उनको ऐसे अनसर्कल कर लेंगे. एक बनाएंगे, शीट बनाएंगे, उस पर सारी वैल्यूज लिखेंगे, उनको अनसर्कल करते जाएंगे. यहां गैप ज्यादा है, गैप्स देखा, इन गैप्स में ये गैप ज्यादा है. एक्सपेक्टेशन देखिए, एक्सपेक्टेशन का हमारे लिए कोई यूज नहीं रह जाता इतना, उससे हम कंक्लूजन नहीं निकालेंगे. कंक्लूजन हमारा किससे निकलेगा, परसेप्शन. परसेप्शन में देखा यार वैल्यूज 4 से कम आ रही हैं, उसको सर्कल कर लिया, ये हमें ठीक करना है. ठीक है. देन द प्रोविजन ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो अपीयर टू बी ए प्रॉब्लम and it is therefore suggested that all students be provided with the core readings. This provides a tangible offering to students that may also help to provide added value in terms of fees. That was also one of the statement having high gap. The findings suggest that students were not impressed by certain lecture theatres, the lack of study areas, class sizes and insufficient media support, and certain lecture theatres need to be revamped, and there is a genuine need to create study rooms for students, reduce class size and provide more technical support facilities. These are all we are getting from the statement of the circle model. Now coming to the limitations of my study. What can be the limitations of the study? क्या क्या limitations हो सकती है रिसर्च की? As we are aware that we know that डिस्पाइट दी पॉजिटिविटीज, इतनी सारी पॉजिटिविटीज मिलती हैं, इतने सारा पॉजिटिव थिंग्स, हमें इतना रिजल्ट्स मिला, एनालिसिस करा हमने, कंक्लूजन निकाला, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स. उनके साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी तो आएंगी, लिमिटेशंस भी तो आएंगी, डेफिनेटली दे विल कम. क्या हो सकते हैं लिमिटेशंस? टाइम पीरियड इन्होंने कहा, क्योंकि ये रिसर्च हर वक्त नहीं कर सकते हम, अगर हम आज चाहें तो नहीं कर सकते. एट द टाइम ऑफ एडमिशंस क्वेश्चनर फिल कराए जाएंगे, उसके बाद 3 महीने 4 महीने वेट करना पड़ेगा, तभी उन्हीं स्टूडेंट से आप परसेप्शन फिल कराएंगे. आफ्टर दैट यू कैन एनालाइज द थिंग्स. ठीक है, टाइम पीरियड. और सैंपल साइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही जा रहे हैं डायरेक्शन में, लेकिन आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जनरलाइज नहीं कर सकते आप उन रिजल्ट्स को. जो चीज R' में रिसर्च हो रही है उस रिसर्च को आप जनरलाइज नहीं दिखा सकते. यू कैन नॉट जनरलाइज द थिंग्स, दैट इज ओनली फॉर द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन नॉट जनरलाइज द थिंग्स. और लिमिटेशंस, एनी अदर लिमिटेशन? परसेप्शन एरर कैसे? हाँ, students basically lacks experience in doing all these kind of things. They don't have any such kind of experience to fill such kind of things. So these were the limitations basically. Now I need your suggestions to improve this model. I need all of your suggestions to improve this model.
हाँ बोलो मैम. Sir, in the last table, the value of significance it was not satisfactory. Yeah. If the value of significance is not satisfactory, that Hmm. means the test which we are applying on that particular sample size, Hmm. it is giving us no conclusions ultimately. So how we can एक्चुअली मैम आप बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कंटेक्स्ट में, ठीक है. उस आप बात कर रहे हैं कि जो टेस्ट आप लगा रहे हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं आ रही है कोई भी, तो डेट मीन्स वो टेस्ट रिलायबल नहीं है, आप ही कहना चाह रहे हो ना. नहीं सर, फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो टेस्ट हमने उस पर लगाया है, हम्म उसके टेस्ट को लगाने के बाद भी हमारी जो वैल्यूज हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रेंज में नहीं लाई कर रही. नहीं लाई कर रही. जब हमारी वैल्यू सेटिस्फैक्ट्री रेंज के बाहर चली गई है तो हमारे रिजल्ट्स कैसे फिर तो इंटरफेरेंस. इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर, एक्चुअली जब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में लगाए जाते हैं ना, तो उसमें अलग अलग करके लगाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट ये, डिपेंडेंट ये, ठीक है. आपने पहले टेंजिबिलिटी का लगाया, उससे सिग्निफिकेंस वैल्यू देखी इतनी आई, फिर रिलायबिलिटी का लगाया उससे देखी, तो किसी से भी इंडिपेंडेंटली नहीं आ रही है, तो डेट मीन्स, लेकिन स्केल हमारा रिलायबल है, तो डेट मीन्स पूरा जो स्केल है डेट इज हेल्पफुल इन डूइंग दैट, फुल स्केल इज डूइंग दैट. कोरिलेशन वैल्यू भी हाई आई थी. हाँ जी सर, जब हम एक साइड इंडिपेंडेंट और दूसरी साइड हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लाइक वन बाय वन हम चेक करते हैं, ठीक है. वन बाय वन सर जब हम चेक करेंगे लाइक आउट ऑफ 7 व्हिच यू हैव टेकन, किसी में भी सिग्निफिकेंस नहीं आ रही है. हाँ. सर स्केल रिलायबल होना इज अ डिफरेंट इशू, बट लास्ट में अगर उसके रिलेशन एक्चुअली मैम मैंने सिग्निफिकेंस टेस्ट उसका एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में करा था, विलिंगनेस टू रिकमेंड, तो विलिंगनेस टू रिकमेंड के केस में वो नहीं आ रहा, ठीक है ना. मैंने एक पर्टिकुलर, मैंने परसेप्शन के कंटेक्स्ट में तो देखा आपने हाई स्कोर आए कोरिलेशन के, लेकिन विलिंगनेस टू कंटेक्स्ट के केस में नहीं आ रहा, तो दैट मींस उस केस में वो सिग्निफिकेंस नहीं है, एक पर्टिकुलर केस के लिए, विलिंगनेस टू रिकमेंड के लिए. ओके, देन अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला. देन नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग कि इस सर्कुलर मॉडल को आप दूसरे कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. एक this is one of my research that is being applied on DTH, that is gap analysis in DTH service quality, an empirical study for exploring customer satisfaction toward DTH services using SERQUEL. अभी हमने हायर एजुकेशन में देखी ना वो चीज, अब DTH में देखो हमने सेम चीज अप्लाई करी है. इफ यू लुक एट ओवर हियर वी हैव अप्लाइड द सेम थिंग. So these were the research objective. The main objective of this research is to find the gap between expectation and perception of the DTH service provider to the customer. It is being justified why this industry is being selected. Indian direct to home TV industry has been growing at rapid pace since the inception. ये सब कुछ हमने दे दिया, सैंपल ले लिया हमने, 200 क्वेश्चन फिल कराए, 15 क्वेश्चन रिजेक्ट भी हो गए उसमें से. दिस इज द सिंपल प्रोसेस दैट वी हैव डन. Then analysis was being done, same scale was developed. Excellent DTH companies will have modern looking equipment, same way tangible, reliability, responsiveness, same scale लिया गया उसी तरीके से, but in the context of DTH services. In the context of DTH services it was being done, same उसी तरीके से हमने average gap score निकाले. We have did the same thing, 22 item scale था as discovered by Parasuraman, but lekin in the context of DTH services. Then same way gap scores we have written, average scores, again points, weighted, unweighted, and then table or concluded on the basis of it. It's a simple research. On the basis of average you can write a research paper on this. सिर्फ आपको normal mean निकालना आना चाहिए सर्कुलर मॉडल में, वो भी आपको SPSS में डेटा फीड करके यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, यू विल गेट ईच एंड एवरी टेबल ओवर देयर. I think it's finished.
Yeah. the same sample has to be Same. the same number of people who have given you. Yeah, you have to use the same number of people. So that's all about my presentation. Thank you very much for listening.